हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शुभम शर्मा। स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स नोट्स के स्पेशल एडिशन में जिसका नाम है टॉक विद टॉपर्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, CSIR नेट का एग्जाम हमारे देश की सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, जिसके लिए हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, बट उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चे इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। आज हमारे साथ जो टॉपर मौजूद है, उन्होंने उस एग्जाम को क्रैक ही नहीं करा, बल्कि एक अच्छी रैंक लाके अपना और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है देविका चैटर्जी। आइए जानते हैं उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी। हेलो देविका, वेलकम टू द शो। Thank you. First of all, congratulations to you for this achievement. Thank you. तो देविका कुछ अपने बारे में बताइए, अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ, मेरा नाम तो देविका है, देविका चैटर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगी कि मैं हिंदी में उतना अच्छा नहीं है, तो ये जो पूरा इंटरव्यू होगा वो हिंदी इंग्लिश मिला के होगा, ठीक है? तो मैं बंगाल से हूँ। मेरा होम टाउन है हावड़ा में। इट इज नॉट इन कोलकाता, इट इज इन हावड़ा। सो एक्चुअली मैं मास्टर्स खत्म किया था और वो 2016 साल में। उसके मतलब एक्चुअली जो होता है, जो CSIR नेट एग्जामिनेशन, वो एक्चुअली बहुत टफ एग्जामिनेशन है। तो सच्ची बात है कि कोई कोई बच्चा एक बार से ये एग्जाम हासिल कर सकता है, बट मैं नहीं कर पाए। बट लेकिन मैं जो मेरा जो मतलब प्रिपरेशन था वो MSc के टाइम में ही हम शुरू कर चुका है वो प्रिपरेशन। तो इसीलिए मैं at the time of 3 I actually cleared the examination when I just about to complete my मतलब MSc degree. That time I qualified the CSIR NET examination. Okay, that basically brings me a lot of happiness. So basically this was your third attempt when you cleared it, right? Yes, it is. It was my third attempt. Okay. So how did it help you, right? After the failure of first two attempts, how did this third attempt help you out for your examination to qualify it? हाँ, तो एक्चुअली बहुत ही फर्क था। जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, मैं क्वेश्चन का एक्चुअली I knew all the patterns of question, how the question actually it has 3 groups. Okay, group A, section A, section B, and section C. The section A basically it contains some lot of aptitudes. Next section B it contains some 2-mark question, and section C it is the most toughest part in the among the entire among the entire question paper. So I actually knew the question paper pattern, but actually my preparation was not that much level to crack the examination. I started securing 74, 80, 82 marks, okay, in CSIR NET examination. But at the same time, when I sitting for the exam, every time I realized that my section 3 preparation strategy is not going well. So you have to focus on that point. So finally, what I had done, I just started preparing my own handmade notes. Okay, that's basically, that's basically benefits me as well as my knowledge, as well it helps me securing a good marks in part C. And the thing is that basically I secured a good marks in part C, but I didn't secure a very good marks in part B. But since part C contains 4 marks each of the question, if you try to attempt at least 20 questions, automatically your result will be, your marks pattern will be automatically 80. So you can easily secure plus 80 marks in the entire examination. And that basically going to make you the exam much comfortable while you are going to crack the exam. So that is, I can see that the notes making strategy is most important for clearing the CSIR NET examination. What you have to do, you have to follow all the CSIR NET previous year question. You see that this portion contains that much of question, this portion contains that much of question, and you just start preparing your own notes on basis of that. You don't need to, like, I'm a student. Yes, I'm a student. I'm from microbiology background, so I didn't have that knowledge of botany. I don't have that much knowledge of physiology, and I do not have that much of knowledge in zoology also. Okay, but what is happening,
for securing the good marks in CSIR NET examination, rather cracking the CSIR NET examination, you don't need to be a pro in every subject. You have to be focused in a small aspect. Just first time I attempted all the ecology part, then I attempted all the zoology part. So likewise, I just and that's why I prepared my notes as well. Okay, and that basically helps me to securing good marks and also helps me in cracking the examination. Right. You're saying that note making is really important. Very important, really very important. It's really very important, because once you have that your handmade notes now, you will be very happy at the end of the day. You will have, like, it's a huge syllabus, 30 units, 13 units, and it's a huge syllabus. So it is not possible to read all the books from taking your cabin and you just read like hell. So you have to do, you have to sort the things out, no? Yeah. So what I suggest to all of the students, those who are aspiring for CSIR NET Life Science, please start making your own notes. Right, that's great. जैसे कि आप बता रहे हो कि सेक्शन सी जो होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा जो अदर सेक्शन से कंपेयर करें अपन। Absolutely. सेक्शन सी की आपने तैयारी कैसे करी, मतलब आप जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या गाइड करना चाहेंगे कि सेक्शन सी के लिए बेसिकली कैसे तैयारी करें? क्योंकि उसमें जैसे हमने सुना है कि अराउंड 75 मार्क्स के, मतलब 75 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 25 सेलेक्ट करके आपको आंसर देने होते हैं, 100 मार्क को कवर करता है। तो उसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए आप एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? सेक्शन सी का तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, और थोड़ा सा हम अगर बात करेंगे मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में, ये थोड़ा सा इजी भी है। लेकिन देखिए, आपका वो जो ऑप्शन है ना, वो 75 है, आपका विंडो बहुत लार्ज है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ 1/4। तो आपको ना पहले टॉपिक चूज करना है। देखिए, हम लोग बायोलॉजी से है, हम लोग का बेस जो है वो बायोलॉजी है। तो जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोग का बेस्ट सब्जेक्ट है, तो हम इजीली ये प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा जो गलती करती है, वो मुझे भी किया था एक्चुअली जो होता है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक पोर्शन है, वो सभी बायोलॉजी में जिन लोग बायोलॉजी से मास्टर्स कर रहे हैं, वो जोलॉजी, बॉटनी, कोई भी सब्जेक्ट में है, तो सबको ये सिलेबस में है। लेकिन ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट ना बहुत हार्ड आता है CSIR NET पार्ट सी में। So if you try to focus on molecular biology, I am not discouraging anyone that you should not attempt molecular biology, but you know, my main motto is to create secure a good marks in CSIR NET examination. Right. That was your positive point. Do skip the very analytical part. You don't need to be like exams. You have a very minimal time. So how could you remember all things and just like put the pick up the options? Absolutely, so it is not possible. So better what you do, I suggest skip the molecular biology part. If you are strong enough in molecular biology, then I can't say any what, but you always try to focus on the developmental biology, in the plant physiology, because there are some direct question which is coming in CSIR NET examination. Right. If you make your own notes on that topic by following the previous year CSIR NET examination, I can assure you at least you will get not all of that, at least you will get 5 to 6 questions from each of the topic, and that is gonna be absolutely right, and you'll surely get 4 marks on that topic, because it's the direct question. If you prepare the note and if you underline your notes very well, and before the day before examination, you just check it out, and whenever you are when sitting for the exam, it's really, I can say that it will be beneficial for you. So try to pick up the topic fast. So choose the topic. Okay. So all of them just made the big mistake that they are all, running after the molecular biology. I don't know why, because the molecular biology question is really hard in CSIR NET. तो आप बात कर रहे हो टॉपिक्स की, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते होंगे जो इजी होते होंगे, या कुछ टॉपिक ऐसे होते होंगे जो बहुत हार्ड होते होंगे। तो आपको कुछ टॉपिक्स इजी लगे या कुछ आपके लिए हार्ड थे, या आने वाले एक्सपीरियंस के लिए आप बताना चाहेंगे कि कुछ टॉपिक जो हार्ड हो उनके लिए कैसे प्रिपेयर करें? जो CSIR NET में पार्ट सी और पार्ट बी दोनों क्वेश्चन से कुछ हम लोग का जो सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक बहुत ही मुश्किल है, मतलब उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हम सोचे कि देखिए, जो टॉपिक्स बहुत मुश्किल है
पहले उसका, अब देखो जो लास्ट ईयर में मतलब 5-6 साल, क्योंकि ये एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, तो अब देखो जो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, अब उससे बेसिस में आपका बुक मंगाओ कोई भी से, मतलब अभी तो ई बुक सारा अवेलेबल है, लेकिन आपका कॉलेज से मंगवा सकते हैं, कोई फ्रेंड से लेंट कर सकते हैं, उससे बेसिस में आपका अपना खुद का नोट प्रिपेयर करो। जो मैं बहुत ही बार बार आपको बोल रहे हैं एस्पिरेंट्स के लिए, खुद का नोट इज सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम सिक्योरली, आई कैन अश्योर इट, क्योंकि खुद का नोट्स अगर नहीं प्रिपेयर रहेगा, इतना बड़ा सिलेबस में आप मतलब लास्ट डे में आपको मतलब पूरा डूब जाएंगे, एकदम डूब जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, इतना सारा एकदम सिलेबस है यहाँ पर। मेरा हुआ था मेरे साथ, इसीलिए मैं बार बार मतलब अगेन एंड अगेन आई एम आप फोकस कर रहे हो। रिपीटिंग दिस वर्ड्स, मेक योर ओन नोट्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप बात कर रहे थे रेफरेंसेस की, तो आपने कौन कौन से रेफरेंसेस यूज करे, वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे? हम उतना सारा बहुत बुक ऐसा कि रेफरेंस के ऐसा नहीं किया मैंने, एक्चुअली बहुत सारा बुक्स का रेफरेंस नहीं लाया मैं। जो जो बुक्स का रेफरेंस लाया वो मेरा कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी वाला जो प्रोफेसर है, वो हम लोग का बोल दिया था। और हम जो किए थे कि देखते हैं कि जिन लोग ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुका, उन लोग कैसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं। सो उन लोग से हम थोड़ा थोड़ा सजेशन ले लिया कि ये पोर्शन के लिए ये बुक सही है, ये एक बुक ही काफी है, दूसरा मत बुक पढ़ो। हम जो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट और बायोलॉजी नाम का एक पोर्शन है हम लोग का सिलेबस में, उससे एक ही बुक काफी है, वो गिलबर्ट। हम उससे बिना और दूसरा कोई बुक नहीं पढ़ा। इम्यूनोलॉजी का एक ही बुक काफी है, वो कूबी, तो कूबी से बिना हम दूसरा बुक नहीं फॉलो किया। तो ऐसे किया, ज्यादा बुक का जरूरत नहीं है, कोई एक दो अच्छा बुक अब पढ़ो, और वो बुक का पूरा भी नहीं पढ़ना है, जितना पोर्शंस रिक्वायर्ड है वो ही पढ़ो। ओके ओके ओके। तो आपने अपनी पूरी ओवरऑल तैयारी कब से शुरू करी, मतलब आपने जब फर्स्ट टाइम दिया था उससे पहले आपने तैयारी अपनी कब से शुरू करी थी? तैयारी अगर ये तैयारी का बात है तो शुरू किया था मैं एमएससी से, लेकिन उस टाइम वो ध्यान से इतना नहीं किए। जब हम एमएससी का फाइनल सेमेस्टर में मैं तैयारी अच्छी मतलब शुरू किया, जब अब 2 टाइम्स फेल हुआ था, तब सोचा कि नहीं, ये स्ट्रैटेजी मेरा अच्छा नहीं है, हमको और भी पढ़ना है और थोड़ा सा एग्जाम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे ही मैं लाइक लास्ट सेमेस्टर ऑफ माय एग्जाम आई स्टार्टेड preparing for CSI and NIPT, in a very जोश वे। राइट। तो थर्ड अटेम्प्ट में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, हमारे एस्पिरेंट्स को आप बताना चाहोगे कि क्या प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी रहेगी इसकी तैयारी करने के लिए? First strategy, make your own notes. That's right. Number 2 strategy, and while making your own notes, that is also important. How will you make your own notes? You are just making notes abruptly. That is not going to happen. That will not help you to crack the exam. Just follow your previous year question paper. On the basis of that, you start preparing your own notes by following one or two good books from a good book, by referring to like 1 or 2 good books. Next is you have to practice. Like, yes, I have a good notes, I have all my concept clear, but I didn't practice the question for part C. Basically for part C, I'm telling you, more you practice, more your concept will be clear. More answers I can get, or like the practice always makes things easier. That's easier. what I Practice makes a man perfect, as हम कहते हैं। Right. And the thing is, whenever you are getting one question, suppose you have fixed one part and you start solving up questions. So you see some question which is not you haven't read it yet. So pick up the question, just Google it, or like take the book out and just put the question on your copy and answer it, and just referring the side by side, you just what you say, incorporate in your notes whenever you are getting new questions. New questions, right. Absolutely. तो आपने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, आपने बताया कि रेफरेंसेस भी लिमिटेड यूज करनी चाहिए। आप बात कर रहे थे एग्जाम पेपर की जो प्रीवियस ईयर में है, तो कितने साल के एग्जाम पेपर को पढ़ना चाहिए, इसका कोई एक आइडिया आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के?
देखिए बट जो होता है कि मैं एक्चुअली जब क्रैक किया था वो 17 साल का था, 16 17 में। तो हम जो किए राइट, थे वो 2011 से क्वेश्चन सॉल्व किया था, अराउंड 2011 का। 5 6 years के। 5 6 years, but राइट now राइट। you are getting more questions. But suppose ओके if ओके I am preparing for 2020's exam, then I have ओके। 2011, like I have 10 years of questions. So 10 more years you of have, question, right more you right। practice. Okay. More you practice, more you will succeed हाँ, and you will achieve your goal, right yes, right right। yes, जैसे कि अपन बात कर रहे थे दीपिका कि एक हाँ। मिथ बनी हुई है कि है ना ये एग्जाम टॉपर्स ही क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ है कि या फिर इसको एवरेज स्टूडेंट्स भी क्लियर कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? जो आप बोल रहे हैं कि एवरेज स्टूडेंट में कि ये क्रैक कर हम्म, सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब जो अब जिसके साथ ही बात बात करूंगी तो वही एक ही बात बोलेंगे कि फोकस्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, दो वो होना चाहिए। वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बट उससे उससे अलग का जो इसके बात अलावा है क्या? वो दो तरीका है। एक है प्रैक्टिस और दूसरा है बुक अच्छे से पढ़ना, उसके हिसाब से अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करना। नोट ये प्रिपेयर अगर करना दो ठीक बिल्कुल। रहेगा, और जो है ना सिलेक्शन, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम्म, सिलेक्शन अपना आपका हो जाएगा। मैं ये बोल नहीं बिल्कुल सकती कि आप बिल्कुल। ये प्रेफर करोगी और वो चूज करोगी, मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अलग बिल्कुल अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग प्रेफरेंस है। बट अगर राइट प्रैक्टिस राइट। अगर करेंगे और नोट्स मेक करेंगे तो दोनों के हिसाब से ही उनका जो क्वेश्चन चॉइस और जो सिलेक्शन वो अपने आप से खुद से ही हो जाएगा। ठीक है, हो इसको जाएगा हो जाएगा। जबरदस्ती कुछ नहीं है, अपने आप से ही हो जाएगा। ओके ओके। तुम आजकल जैसे कि आप देख रहे हो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हाँ 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 स्टूडेंट्स कई होते हैं जो क्लियर कर लेते हैं, कई रह जाते हैं, तो हाँ। उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगी कि मतलब उनको भी कोई एक सेटबैक प्लान रखना चाहिए या उनको अटेम्प्ट वापस देने चाहिए, जैसे आपने थर्ड अटेम्प्ट दिया आप बता रहे हैं, तो हाँ उनको भी इसके लिए क्या रेगुलर मोटिवेटेड किस तरीके से रहना चाहिए? हाँ, देखिए ये तो सबसे होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एग्जाम का सबसे प्लस प्लस फैक्टर जो है ये साल में 2 बार होता है। तो अगर राइट अब राइट राइट। जून में अगर नहीं होगा तो आपको दिसंबर में दिसंबर में होगा। मैंने मतलब अपीयर कर सकते हैं। बट हम्म, हाँ, इसको पहले ये मोटिव में होना चाहिए कि अगर मेरा इस बार नहीं होगा तो दूसरा बार हम ट्राई करेंगे। अगर ये सम हम्म, हो जाएगा कि अरे नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार भी नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ओके मतलब ओके। कंसिस्टेंसी एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए कि हम ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम्म, थोड़ा सा अदल बदल होगा, हम्म, मतलब थोड़ा सा डेफिनेटली और ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगा, बट लेकिन हम्म, प्रिपरेशन जो चल रहा है वो सही तरीके से वैसा ही चलेगा। नहीं तो तब हम दूसरा टाइम में जो दिसंबर में, अगर जून में नहीं होगा तो दिसंबर में हम हम्म, अपियर कर सकते हैं। ओके ओके ओके। तो जैसे इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, हाँ हाँ मतलब आप ए बी और सी, आपने बात करी कि सी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बी थोड़ा सा इजी रहता है, तो इसका जो एग्जाम होता है, हाँ तो एग्जाम के अंदर क्या पैटर्न रहता है इसके, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के रहते हैं, वो हाँ किस हाँ। तरीके का रहता है? देखिए पार्ट बी का जो क्वेश्चन है वो सीधा साधा है, हम्म, सीधा साधा है। आपको जितना हम्म, मेमोराइज पावर है, आपको आप जो हम्म, जितना मेमोराइज कर सकते हैं, आपका जो जितना इंफॉर्मेशन अपना दिमाग में है, अगर वो ठीक बिल्कुल ठाक है बिल्कुल। तो आप पार्ट बी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीली बिकॉज अटेम्प्ट कर बहुत सकते पार्ट हैं। बी से बहुत सारा विच क्वेश्चन कैरी, होते हैं। शायद वो 40 मार्क्स का कैरी करता है पार्ट भी आपका। हाँ नहीं, वो 40 मार्क्स का हम्म, नहीं है, वो जी 70 मार्क्स का है। ठीक है, थर्टी 70 फाइव मार्क्स, क्वेश्चन ओके है। हाँ ओके थर्टी ओके फाइव ओके। क्वेश्चन है। तो तो लेकिन ये 35 जो क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से इधर उधर से आते हैं। ठीक है, ओके बट ये ओके ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ओके। कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगता है, बट एक दो क्वेश्चन। बट लेकिन आपको जितना मेमोराइज पावर है आप कर सकते हैं। बट बिल्कुल। टोटल सेक्शन सी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन बी। हम्म, सेक्शन सी में ज्यादा कॉन्सेप्ट लगेगा, बिल्कुल। लेकिन ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो कुछ कुछ क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि ओके। बुक का एक एक लाइन लाइन उठा के क्वेश्चन आता है। कोई एक दो बुक है, हम्म, अच्छा बुक है, मतलब वो क्या है ना, राइट। प्रेस्क्राइब बुक होता है, वो सीएसआई नेट का प्रेस्क्राइब बुक होता है, उससे ओके क्वेश्चन ओके आते हैं। ओके वो एक एक लॉडिश लॉडिश बुक है, वो सेल बायोलॉजी का बुक है, वो बुक उठा ओके के क्वेश्चन आता है। गिलबर्ट ओके ये भी ओके एक बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वो उठा के क्वेश्चन आता है। तो क्या होगा ना, ओके आपको जितना प्रैक्टिस करेगा
आप देख सकते हैं, हम्म, आपका खुद से चला आते हैं, ओके ठीक है, ये बुक का ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ओके, चलो ये लाइन नोट करके रखो, तो राइट। ये हो जाएगा। उनको भी नोट्स में आप मेंटेन करके रखिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो एकदम ये भी मतलब सुना है कैसे मैंने कर, कि रिसर्च में से भी बहुत सारा इसमें आता है, सेक्शन सी के अंदर जो रिसर्च बेस्ड होता है सेक्शन सी उसके के ऊपर। अंदर रिसर्च का भी आता है, लेकिन देखिए ऐसा तो नहीं है कि एमएससी के बाद ही ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम है वो एमएससी साथ साथ ही हम लोग अपेयर कर सकते हैं। तो हम्म, ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का अंदर मतलब दिमाग में बहुत सारा रिसर्च आइडियाज है, बहुत कुछ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हम के पढ़ते पढ़ते वो थोड़ा थोड़ा कुछ मतलब आ जाते हैं। और आ एमएससी जाता का है। जो प्रैक्टिकल में हम तो कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, उससे हिसाब हम्म, से हम लोग का मतलब दिमाग में वो कॉन्सेप्ट अदल बदल होते जाते हैं, ठीक है। तो हम्म, ये जो कॉन्सेप्ट का लेना देना है, ये एमएससी से होता है, लेकिन दूसरा जो हम्म, तरीका है वो बुक्स पढ़ना, सही बुक चूज करना। बिल्कुल बिल्कुल। बुक्स परफेक्ट चूज करो, लिमिटेड चूज करो, उनसे नोट्स प्रिपेयर करो। उससे उनसे अब नोट्स अपन, प्रिपेयर करो। बिल्कुल। और जो इम्पोर्टेंट लाइन है कि एक नोट्स अगर बनाओगी ना, तो आपको उस हम्म, पास में वो बुक का जो पेज नंबर वो थोड़ा सा डाल के रखो, क्योंकि बिल्कुल होता है बिल्कुल। ना कभी जो आपको, आप जब आप रेफर नोट्स कर अपना, सको वापस। हाँ हाँ हम्म, हाँ, नोट्स जब पढ़ रहे हम्म, लग रहा है कि ये हम सही नहीं किए, कॉपी किए थे, हम्म, फिर बुक खोल के देखो जो हाँ ये सही है की, बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ। अब अपन ने बात कर ली पेपर की, और पैटर्न। और एक है, अगर मेरे पास है, अभी तो मेरे पास मौजूद नहीं है, अगर आसपास में है तो हम दिखा सकते हैं। मैं जब किए बिल्कुल। थे नोट्स प्रिपेयर, नोट्स के पास में ना हम जो वो टॉपिक से सीएसआईआर नेट में कौन से साल का क्वेश्चन आया था, वो भी हम नोट करके वो रखा भी है। नोट करें, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ, बहुत जरूरी है वो भी, प्रीवियस ईयर बहुत का जैसे जरूरी आप है, बता रहे बहुत थे। जरूरी है। राइट राइट। आप जैसे अपन ने बात करी एग्जाम पैटर्न की, बात करी अपन ने, नोट मेकिंग की बात करी। हाँ अब एग्जाम डे की बात करते हैं, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, एग्जाम डे पे क्या ना करें, क्या करें। उसमें भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ क्या हाँ। करना चाहिए क्या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या गाइड करना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को? देखिए तब एग्जाम के जो मतलब डेट है, देखिए एग्जाम हम्म, बहुत सुबह सुबह होता है, ठीक है, 9 से 12, हाँ, तो ये ओके 9 बजे ओके। से एग्जाम होता है और हम लोग को पहुंचना पड़ता है 8 बजे। 8 बजे हम लोग को उधर पहुंचना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल सोचो कि एग्जाम के डेट में कुछ ना रखो, ठीक है, एकदम सुबह उठ के बिल्कुल। ब्रश करके थोड़ा सा कुछ खा के एग्जाम देके चला जाओ। उससे जो ओके अगर ओके। मतलब पहला जो दिन है, उस दिन हम्म, जो छोटा छोटा ट्रिक्स होता है ना, जो जेनेटिक्स का जो हम्म, फॉर्मूला होता है और इकोलॉजी का एक दो छोटा छोटा ट्रिक्स होता है, वो सब दिख के रखो। हम्म, मतलब आप बड़ा बड़ा नोट्स के साथ साथ एक छोटा कॉपी रखो, उसमें मतलब थोड़ा हम्म, सा ट्रिक्स आप मौजूद करके रखो। तो उस ओके। लास्ट दिन आपको वही काम करना है, सो सिर्फ वो शॉर्ट सब। ट्रिक्स बना के रखें अपनी अपनी। हाँ हाँ हाँ। और एक एक ओके। जगह जो आपको लग रहा है कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और थोड़ा सा मुझे और भी दिखना है, तो एक अगर एक क्वेश्चन लग जाएगा तो वो आपके दिमाग के ऊपर। अब अगर ले सकते हो तो ओके। कर सकते हैं, अगर नहीं ले सकते हो तो नहीं कर सकते, बट लेकिन ज्यादा कुछ मत पढ़ो, नया टॉपिक मत पढ़ो, मत। नया टॉपिक बिल्कुल मत पढ़ो। ना ना ना, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनसे पढ़ो, जो उससे शॉर्ट ट्रिक्स ऊपर ही, बना रखी हैं उनसे प्रिपेयर करो, उससे 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 ज्यादा अलावा उससे कहीं मत जाओ। उससे अगर थोड़ा एक एक अगर हमको जुड़ना है तो, अरे ये नहीं हुआ, ठीक है चलो देख के चलो, ये उनका एक्सटेंशन है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन एकदम वो कर पूरा सकते नया हैं। टॉपिक एग्जाम के पहले दिन नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना लगता है, है कि बिल्कुल यार बिल्कुल। ये तो क्वेश्चन आ गया है, चलो एक बार देख के चलो, हम्म, नहीं एकदम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको इस हम्म, बार नहीं होगा, कल दोबारा आ जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में आप ये राइट कोशिश राइट। करो, बट लेकिन वो नहीं करो। हम्म, और एक पैटर्न आपको मेंटेन करना, आपको आप देखो, आप अगर ये एग्जाम आपको अपियर करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल। होने के बाद आप देखो कितना मार्क्स स्कोर कर रहा है, आपका ग्राफ कितना है। ग्राफ कितना है, अगर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अगर फर्स्ट टाइम में अगर कोई 80 मार्क्स ला के आया है, तो हम्म, सेकंड टाइम में वो 90 आया है, ठीक है, उनका ग्राफ ज्यादा इंक्रीज हो मतलब रहा है। हो रहा है, तो चलो ये अब रखो, क्या कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी रखो कि मेरा हो जाएगा, मैं इम्प्रूव कर रहा है। बट ओके। लेकिन 80 से अगर 60 हो जाएगा ना, तब मेरा दिमाग में भी नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल सही उसमें बात है। फोकस करो, जो आप जून में किए थे उससे थोड़ा सा बेहतर प्रिपरेशन, थोड़ा सा टॉपिक बढ़ाओ, और दिसंबर में मतलब थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए कोशिश बेटर करो। करने की कोशिश करते जाओ, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग मतलब एक स्टूडेंट को इसकी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए
मतलब कितने टाइम की प्रैक्टिस जरूरी है, कितने टाइम की प्रिपरेशन जरूरी है, कितना टाइम लगेगा ही लगेगा स्टूडेंट्स को इस एग्जाम की CSI या नेट के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए? ये भी मैं जानना चाहूँगा। टाइम लगता है, टाइम तो लगता है बिल्कुल। बिल्कुल। बट अगर किसी को एम है कि हम MSc के साथ साथ कर लेंगे तो बिल्कुल उसको टाइम मतलब उसको ध्यान और ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। जिसको लगता है कि ठीक है हम MSc के साथ साथ दे रहे हैं, ठीक है हमको 2-3 बार अटेम्प्ट में ही हमको करना है, तब बिल्कुल जब बिल्कुल। MSc का लास्ट सेमेस्टर हो जाएगा उससे जो 6 महीने ज्यादा है, मतलब सेमेस्टर MSc का लास्ट सेमेस्टर सारा यूनिवर्सिटी इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया सारा यूनिवर्सिटी में वो टाइम है कि अप्रैल में अप्रैल में जून तक बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट मतलब निकल जाते हैं, ठीक है, अनाउंस हो ये जाता है। रूल ही है। तो उसका टारगेट है, सोचिए कि दिसंबर में, आने वाला दिसंबर में क्लियर करना टारगेट है। वो 6 महीने आपको एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कोई बिल्कुल मतलब बिल्कुल। फांकी नहीं चलेगा, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं तो होगा। ये जो 6 महीने का टाइम बता रहे हो, हाँ इस 6 महीने के टाइम के लिए एक क्या परफेक्ट टाइम टेबल आप सजेस्ट करोगे कि स्टूडेंट्स को मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से वो इस टाइम में प्रिपेयर करें ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी ना रह जाए? हाँ, इसका है कि फर्स्ट जो मेरा स्ट्रैटेजी है कि देखते हैं मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन सा है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग पॉइंट से स्ट्रॉन्ग, ज्यादा ध्यान देना ये चाहिए। स्ट्रॉन्ग है, चलो उससे और स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। इसको ना क्या होता है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको बड़ा घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए कोई कोई स्टूडेंट्स होता है ना जो जिन लोग अच्छा स्टूडेंट्स भी हैं, उन लोग का कोई फिनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं MSc के बाद, उसको फैमिली प्रेशर देते हैं कि आप कुछ जॉब करो, ठीक है, कुछ ला बिल्कुल के दो बिल्कुल घर में, वो ट्यूशन कर लेते हैं, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ऐसे में टाइम नहीं फिक्स करेंगे कि आपको ये करना है, क्योंकि उनके लिए वो मतलब वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अच्छा भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसको पैसा कमाने का भी एक बिल्कुल, वो एक भी जरूरी है मतलब उसके साथ में वो उनको। भी जरूरी है, ठीक है ना। तो उसका, तो इसीलिए हम जनरल जो बोल रहे हैं कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो सबसे पहले शॉर्ट आउट करो, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसका स्ट्रॉन्ग और बनाओ। क्योंकि जैसे कि जो भी करो ना, तो एटलीस्ट 2 days इन अ वीक यू कंप्लीटली शुड बी फ्री आउट ऑफ एनीथिंग, मतलब फ्रॉम all other environment, all other surroundings. You should give that 2 days for your CSIR NEET exam preparation. Okay, that day you short the books. That day you practice lot more, reading the books and taking the lines and just putting in, incorporating in your notes book. That's all. That's all I can say. ओके। तो जैसे आप अपन ने बात भी करी और आपने भी बताया कि इस एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा टफ है, तो इस एग्जाम के साथ साथ एक स्ट्रेस बस्टर भी जरूरी है। तो आपने कोई स्ट्रेस बस्टर आपका जो मतलब आपका माइंड रिलैक्स करने के लिए आप एक्टिविटी करते हो, या आप अपना माइंड किस तरीके से रिलैक्स करते थे? स्टूडेंट्स को कोई हाँ और आइडिया आप देना चाहो? हाँ, है तो एक्चुअली मैं जब एग्जाम क्लियर किया था तब तो मतलब इतना वेब सीरीज ये सब वगैरह कुछ नहीं आया था, ठीक है, और उससे ओके। सही उतना पैसा भी नहीं है सब्सक्रिप्शन करने के लिए। तो उसी टाइम इसको तो छोड़ दीजिए। मैं पेंटर हूँ, तो मैं पेंट करती हूँ और मैं गाना भी गाती हूँ, तो ये मेरा रिफ्रेशिंग मूड है यार की, बस बहुत मतलब लिसनिंग बहुत सॉन्ग एंड like painting is kind of a refreshment for me. And for रिफ्रेशमेंट other है। students, they may read books, or like they play with their friends, they chat with their friends. But I would not suggest to watch Netflix ओके ओके। because चैटिंग तो it kills a lot of time. It kills या lot of time. राइट, अ लॉट ऑफ Yes, टाइम, राइट lot राइट of राइट। times. एक सीरीज Basically, I देखने बैठो started तो वो पूरा लग जाता है। I started watching this, Netflix, Amazon Prime, and all just after 2018 when the Game of ओके Thrones season is coming. I saw that and I ओके experienced ओके। myself. It kills a lot of time. It kills lot of time. एब्सोल्युटली इट डज। So मैंने that भी देखा I है। wouldn't suggest. I राइट I राइट। wouldn't suggest to watch this kind of thing. प्रिपरेशन के टाइम पे इन सब जो आपके माइंड No, आपका जो no, no, डाइवर्ट no. करते हैं इन सब चीजों से दूर रखें। Ha. Just abstain yourself from watching web series. Rather, you can watch a movie, good movie that can refresh your mind, but abstain yourself from watching this kind of web series. Otherwise, it kills a lot of time. एक
एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, मैं आपसे स्टार्टिंग में पूछना चाह रहा था लेकिन वो थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ आपको इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिली? व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज दिस हाँ फील्ड? मतलब लाइफ साइंस ही आपने चूज करा हाँ तो हाँ। पहले से एकदम क्लियर था कि लाइफ साइंस में आपको सीएसआई या नेट का एग्जाम को क्लियर करना है, या कुछ अदर थॉट्स भी थे? नहीं एक्चुअली मैं तो जब मैं जब मतलब बीएससी किया था उसके बाद एमएससी हम्म, किया था। वो हम एक्चुअली हम्म, मेरा जो आसपास में जिन लोग स्टूडेंट्स है, जिन लोग मेरा सीनियर्स है, उससे देख के मेरा मोटिवेशन आ गया था। उन लोग का अच्छा ओके, रैंक नाइस। मिला। मतलब उन लोग को बोलते हैं कि चलो तुम ऑल इंडिया कुछ मतलब ऑल इंडिया कोई एग्जाम में क्रैक किया था तो आपका पाथवे भी बहुत मतलब थोड़ा सा मुश्किल भी, इतना मुश्किल आसान हो जाएगा ना, थोड़ा सा पाथ भी क्लियर हो जाएगा मतलब फ्यूचर में। तो देख के पता चला कि ठीक है चलो मैं मतलब हायर स्टडी करेंगे, पीएचडी करेंगे एमएससी के बाद। वो पीएचडी करने के लिए एक ही रास्ता है सीएसआईआर नेट क्रैक करना, क्योंकि इट इज राइट, नॉट पॉसिबल टू गिव money from my pocket to pursue my own PhD. So ओके। so I'll get a government fellowship, हम्म, and that is why I got inspired by seeing other students, other good students, other good seniors, as well as my parents told me that no you can't, no you can't, give up, you have to do. या यू हैव टू, बिल्कुल Yes, बिल्कुल। yes. नेवर एंडिंग एक वो होता है अंदर से कि हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल कि छोड़ना नहीं है, इसको कंप्लीट ही हाँ करके हाँ वो हाँ करेंगे। हाँ हाँ। That's amazing देविका। इट वाज अ वेरी नाइस सेशन देविका। बहुत Thank मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। आपके सवालों का जवाब आपने जिस तरीके से दिया बहुत ही इंटरेस्टिंग था। you. इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो। Thank you. तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना देविका को, देविका ने शेयर करी अपनी सक्सेस स्टोरी। देविका ने बताया कि रेगुलर प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम क्रैक करवाने के लिए। तो बने रहे टॉपर्स नोट्स के साथ। आने वाले टाइम में हम लेके आएंगे एक और टॉपर को और सुनेंगे उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी। अगर आपके भी है कुछ सवाल तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हम लेके आएंगे उन्हीं सवालों के जवाब को टॉपर्स की जुबानी। तो लाइक करें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।